कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। जीवन में एक बात याद रखिए, धैर्य बहुत आवश्यक होता है। जब भी हम किसी लक्ष्य के पीछे जाते हैं तो हम बहुत जल्दी उस रास्ते को बदलना चाहते हैं कि अरे ठीक नहीं हो रहा, या इस टीचर के यहाँ समझ में नहीं आ रहा, या फिर ये कोचिंग अच्छी नहीं है, या ये नौकरी जो हम कर रहे हैं इसमें मज़ा नहीं आ रहा। तो बच्चों, एक बात याद रखिए कि 100 जगह एक एक फुट गड्ढा खोदने से आपको पानी नहीं मिलेगा। अगर आपको पानी चाहिए तो आपको एक ही जगह पर 100 फुट गड्ढा खोदना पड़ेगा। और उसके लिए क्या जरूरी है? धैर्य, पेशेंस। इट मीन्स पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, स्पेशली इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर आप में पेशेंस है तो आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे इफ योर डायरेक्शन इज राइट। तो अपनी डायरेक्शन भी देखिए और अपना एम भी देखिए। समटाइम्स योर एम इज ऑल्सो नॉट गुड और नॉट फिट फॉर यू। तो पहले देखिए आपका एम आपके लिए फिट है या नहीं। इसके लिए यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, योर रिलेटिव्स, योर टीचर्स, और जिसको भी आप अपना गाइड मानते हैं। Previously we have discussed about Biot-Savart's law and its applications मैग्नेटिज्म में, एंड आज मैं आपके पास मैग्नेटिज्म का 4th वीडियो बनाने वाला हूँ। मैग्नेटिज्म 4। Okay, you know very well in electrostatics we are finding electric field intensity with the help of Coulomb's law, निकाल सकते हैं उससे। And also we can find electric field intensity with Gauss theorem, यानी Gauss theorem is also maybe one of the method to find electric field intensity, and it is related with Coulomb's law. In the same way here, we can find magnetic field with the help of Biot-Savart's law, but we can find magnetic field with the help of one more law, that is Ampere's circuital law. In Gauss theorem, we are using a Gaussian surface closed, and here we are using an Amperian loop in which current is flowing. It means circuit should be closed. So today I am going to give you Ampere's circuital law and its applications. Okay, it is very very important. Actually in 12th class everything is important. Otherwise you are going to tell कि अरे यार पंकज सर तो हर ही चीज को इम्पोर्टेंट बताते हैं। इम्पोर्टेंट तो है। सो एम्पियर सर्किटल लॉ बच्चों में डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ओके, सो फॉर एम्पियर सर्किटल लॉ फर्स्ट वी नीड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं। इट स्टेट्स दैट the line integral of magnetic field over a closed circuit in vacuum, air or free space is numerically equal to, थोड़ा पेन में मजा नहीं आ रहा, दूसरा ले लेता हूँ, mu naught times the current threading the circuit या current in the circuit, threading the circuit mathematically integration b vector dot dl vector equal to mu naught I। जैसे ही आप इसको देखेंगे आपको लगेगा अरे ये तो गॉस थ्योरम ही है। देखो मैंने कितना बढ़िया लिखा है, आप देखिए, नंबर भी देता हूँ उसको। देखिए, it states that
द लाइन, फिर इसको इंटीग्रल बोला, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज सर्किट in vacuum, air or free space is numerically equal to mu naught times the current threading the circuit. देखिए कितना बढ़िया बनाया, फिर से बोलता हूँ, देखिए the line integral of magnetic field over a closed circuit in vacuum, air or free space is numerically equal to mu naught times the current threading the circuit or in the circuit. And now you know very well, if any law is there then we have to prove it. Why we have to prove it? कि ये सही है या गलत नहीं है. अरे ये तो सही है तभी तो दिया है उन्होंने, तो मैं इसका प्रूफ कर रहा हूँ. ये मिटा देता हूँ. And already I told you number of times कि when you watch any video, I have a request, please take a copy and pen, write everything. So proof. For that we have to take a circuit. So circuit, ये circuit ले लिया मैंने. This is a straight conductor infinitely long and carrying current I in the upward direction. So you are telling that sir, circuit is not complete. Complete है, यहाँ पर मैं सेल या बैटरी लगा सकता हूँ, वो दिखा नहीं रहा हूँ मैं. And you know very well, when current is upward, then magnetic field lines are anti-clockwise. It means here number of concentric magnetic field lines generates and they are anti-clockwise, and I am taking one of them. Now है बहुत सारी, मैंने एक ही ली है, and its center is suppose O and radius is R, and this is the direction of magnetic field B, and this is dl also. Dl means length. Correct? चलो खेल चालू करते हैं. तो आपको पता ही है कि हम किसी के घर जाते हैं तो ऑलवेज नमस्ते करते हैं, वो परिचय देते हैं, ये वो आंटी है, ये अंकल है, ये बच्चा है, इसका नाम ये है, तो ये बताना जरूरी है. कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यहाँ लिखता हूँ, स्ट्रेट कंडक्टर carrying current from x to y. x to y करंट ले रहा है. ओके, सो नंबर ऑफ concentric magnetic field line appears. और मैंने उनमें से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ले ली है. एंड यू नो वेरी वेल, व्हेन वी प्रूव एनी लॉ देन वी कैन टेक LHS और RHS ले आएंगे तो हो जाएगा. तो LHS ले लेते हैं. LHS क्या था हमारा? B vector dot dl vector. Okay, so this is a dot product. Always we open dot product. Dot product is A vector dot B vector equal to AB cos theta. So this is B dl cos theta. Theta is angle between B and dl. So look here, B and dl in the same direction. It means theta is 0. अरे यहाँ 90 आ जाता तो ये खेल ही खत्म हो जाता. cos 90 is 0. So it is integration B into dl. Now कौन अंदर रहेगा? dl, d वाला याद है. तो B is outside, inside there is d loop, and limit इसकी लिमिट 0 to 2 pi r. So it is B into dl का 2 pi r आ जाएगा. आंसर तो आया ही नहीं भाई. क्या लाना था आंसर? याद है आपको? आंसर लाना था म्यू नॉट आई. तो देयर आर टू मेथड्स. फर्स्ट मेथड देखिए आप,
यू हैव टू राइट हियर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर, जो आपको पता नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ आपको याद है क्वाइल की मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्वाइल की म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, याद होगा। तो स्ट्रेट कंडक्टर इज ऑल्सो रिलेटेड विद दैट। स्ट्रेट में नंबर ऑफ टर्न्स नहीं आएगा, एंड उसकी जगह वो नीचे चला गया और पाए बन गया। तो ये आप याद रख लें, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। एक्चुअली नाउ इन द सीबीएसई कोर्स इसका प्रूफ नहीं है, इसलिए मैंने करवाया नहीं आपको, बट ये याद रख लिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसको अगर मैं यहाँ रखूंगा तो 2 पाई आर कैंसल आउट, यू विल गेट म्यू नॉट आई। ओके, पर आपको ये नहीं याद तो क्या करोगे आप, देखो, यू नीड दिस आंसर म्यू नॉट आई, तो बी तो चाहिए नहीं, तो आपने लिख दिया म्यू नॉट आई, और ये क्या इंटू 2 पाई आर। नाउ यू नॉट नीड दिस ऑल्सो, सो अपॉन में लिख दो 2 पाई आर। नाउ कट कट कट, क्या आया, म्यू नॉट आई, है ना, हेंस प्रूव। सो ये एक ट्रिक है, बट इफ यू नो द वैल्यू यू कैन राइट दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर, देखो वही आया, हेंस प्रूव। नाउ द सेम डेरिवेशन वी कैन यूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहाँ एप्लीकेशन भी है, देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, लॉ नहीं लिखा था मैंने यार, भूल गया, करेक्ट। तो मेरा पहला एप्लीकेशन में क्या करूंगा, मैं स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long straight current, मिटा देता हूँ है बच्चा, एक्चुअली प्लेस इज नॉट देयर, current carrying conductor। एक्चुअली मैं एक तीर से दो शिकार कर रहा हूँ, एक डेरिवेशन से दो हो गए, देखो कैसे होंगे। अगेन आई हैव टेकन ए स्ट्रेट कंडक्टर and magnetic field lines are concentric circular in anti-clockwise direction, current upward है, तो मेरा सेम वैसे ही चलेगा। तो प्रूफ नहीं लिखना, बस अब बस प्रूफ मिटा दो, देखो कंसीडर एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, एक्स वाई भी लिख सकते हो, कैरिंग करंट फ्रॉम एक्स टू वाई, सो नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अपीयर्स। ओके, तो अब एम्पियर सर्किटल लॉ से चलना है हमें, सो वी आर टेकिंग द फुल एम्पियर लॉ फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके, okay, now start. You know very well we have to open the dot product, and this is b dl cos 0, because b and dl are in the same direction, equal to mu naught I. Now b is outside, inside is dl, this is mu naught I, and limit is 0 to 2 pi r, dl means length. Okay, so b is here, integration of dl is l, और लिमिट रखेंगे अपर माइनस लोअर, तो यू विल गेट 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, और b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर है। देखिए आ गया ना सेम, यही तो हमने पुट किया था। इट मीन्स वी कैन इजीली फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। पर जनरली ये एग्जाम में आता नहीं है, बट फार्मूला इज इम्पॉर्टेंट, because this formula we have to use number of times. Abhi afterwards we are going to use it, but a very important application is here,
that magnetic field due to a current carrying solenoid. Solenoid याद आ रहा होगा आपको. Solenoid is, you have studied already in class 10. It is a device in which number of turns are wound very close to each other. तो definition में लिखूंगा नहीं यार आप, है ना. तो क्या है एप्लीकेशन? Magnetic field inside a current carrying solenoid. Okay, so I am giving you first of all the definition of solenoid. You can write. A solenoid is a device in which number of turns of conducting wire or copper wire are wound very close to each other such that the length of the solenoid is much greater than its diameter. ठीक है, नहीं आया? फिर से. A solenoid is a device in which number of turns of conducting wire or copper wire wound very close to each other so as to form a helix. So as to form a helix, or in the form of helical ring. Helical ring. In solenoid, length is much greater than its diameter. Length बहुत ज़्यादा होती है. तो ऐसा solenoid होता आपने देखा होगा. ये देखिए, this is one of the solenoid, and suppose it carries current from here to here, and it has a magnetic field. It has a magnetic field, not outside, only inside. तो मैं एक डायग्राम बताता हूँ, ये शायद आपने 10th में बनाया भी होगा, याद होगा आपको. देखिए यहाँ बनाते हैं अपन. In solenoid, this is direction of, ये देखिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है, that is dot magnetic field, and here we have a magnetic field, that is cross magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होते हैं. Here ये देखिए करंट एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ करंट क्या हो गई? क्लॉकवाइज. फिर और एक और बना लेते हैं. चलो भाई, एक बड़ा भी बना. Here also current, here also current, and here we have magnetic field lines. ये सॉरी, क्रॉस नहीं करना है बीच में. Here we have a point, that is P point. P point लेते हैं because we have to find magnetic field here. Okay, and ये जो होता है, अगर यहाँ से ज्वाइन कर दो आप, तो these are turns. ये टर्न्स हैं, देखो आप, these are turns. अरे वाह, क्या डायग्राम है, इतना बढ़िया मैंने बना दिया, मुझे भी विश्वास नहीं है. अब अगर हम इसको कट करें ऐसे, यू कैन सी द डायग्राम फ्रॉम द एनसीईआरटी और एक्यूरेट बनाना. और इसको कट करें हम, जस्ट लाइक ए तरबूज को कट किया तो उसका सेक्शन दिखाई देता है, तो ऐसे सेक्शन देखिए इसका, सेक्शनल व्यू. ये देखिए, दिस इज सेक्शनल व्यू. थोड़ा अच्छा बना यार, भाई क्या कर रहे हैं, अच्छा बना. ये देखिए, एंड हियर, अभी याद है, मैग्नेटिक फील्ड इज डॉट हियर, and magnetic field here is cross. Correct? And inside magnetic field is uniform. Straight होता है, uniform यानी straight. Correct? और अगर आपको निकालना है
तो आप क्या यूज कर सकते हो, आपका ये देखो, है ना, ये कर्ल ऑफ द फिंगर है मेरी, करेक्ट. नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड, and magnetic field is suppose here inside at point P and at point Q outside. So we consider a small section AB, and if you have to apply Ampere circuital law, for Ampere circuital law circuit should be complete. Complete means पूरा एक क्लोज सर्किट बनाना पड़ेगा, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो कंप्लीट कर लेते हैं ए बी सी डी, और ये डिस्टेंस को h ले लिया है. एक्चुअली जनरली आई एम टेकिंग l, बट इन एनसीईआरटी इट इज h, तो मैंने h ले लिया, क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि यार एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली करें. इन द एग्जामिनेशन इफ यू आर डूइंग विथ एनसीईआरटी देन यू विल गेट द मार्क्स, तुरंत मिल जाएंगे इंस्टेंटली आप. ओके, ये डायग्राम आपको अच्छे लगे होंगे. तो डायग्राम के बाद नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड. अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 21 मिनट हुए हैं, 5 या 6 मिनट में, 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा. ओके, सो आई एम टेकिंग दिस वन. कंसीडर से स्टार्ट करूँगा, आपको मालूम है मेरी आदत ही बिना कंसीडर के मैं चलता नहीं. कंसीडर ए सोलेनाइड इन विच, इसमें क्या क्या है, इन विच H is equal to length of section capital N equal to total number of turns, and small n equal to n upon h equal to number of turns per unit length. This is very important one. N, small n. Small n is number of turns. ये number of turns per unit length. आप L भी ले सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं. So we consider a if नहीं लिखता, let अच्छा लगेगा, कि आई करंट जा रहा. Let I be the current flowing through solenoid, flowing through solenoid. Okay, then consider a section, consider a section A, B, C, D. Okay बच्चों, so now we have to find magnetic field due to this current inside, but we have to take the whole section, and when we are taking the whole section we have to apply Ampere circuital law, and in Ampere circuital law we have to take length. So first length, second length, third length, fourth length. Actually यहाँ देखा जाए तो ये 90 बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और ये लेंथ, दिस इज ऑल्सो 90, एंड दिस इज आउटसाइड, एंड आउटसाइड द solenoid there is no magnetic field, because magnetic field here is cross and here is dot, so they cancel out each other. So practically outside solenoid there is no magnetic field. तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, सिर्फ यही बचता है ए बी वाला. चलो लिखना तो पड़ेगा यार, बिना लिखे काम नहीं होगा. तो मैं इसको मिटा देता हूँ बच्चों, ये आपको पता है, एम्पियर सर्किटल लगा रहता हूँ. Therefore from Ampere's सर्किटल लॉ, क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ प्यारे बच्चों, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है, एन टर्न्स है यहाँ पर, कितनी टर्न्स है एन, तो टोटल करंट होगी, और ये कहाँ से कहाँ होगा, ये होगा ए बी सी डी पूरा होगा. तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ये क्या होगा,
ए टू बी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ए टू बी हुआ, फिर ऊपर गए थे हम बी से सी, बी टू सी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस सी टू डी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस अगेन डी टू ए आएंगे, डी टू ए बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1 एंड हियर आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग, तो भी मुझे मिलेगा. तो देखिए अब आप बी टू सी, ये बी टू सी था, ये था ए बी सी डी. ओके, so this magnetic field and this magnetic field they are equal but in opposite direction, तो they cancel out, या ये cos 90 है इसलिए कैंसिल हो गया, ठीक है ना. तो मैं इक्वल एंड अपोजिट लिख देता हूँ. सो एज ये बी टू सी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ किसका है, ये डी टू ए बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर. इट मीन्स देयर एडिशन इज जीरो, इन दोनों का एडिशन जीरो हो गया. एंड वी हैव सी डी, सी टू डी, this is outside, this is outside, and already I told you outside the solenoid magnetic field is zero. तो यहाँ हम आगे लिख लेते हैं, also practically magnetic field outside a solenoid is zero. क्यों जीरो है याद है आपको ना, अरे वन इज डॉट एंड अनदर वन इज क्रॉस, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं. ओके, तो ये वाला जो है हमारा विच वन, सी टू डी, देयरफॉर सी टू डी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू जीरो. दिस इज ऑल्सो जीरो. तो तीन चीजें जीरो हो गई. कौन कौन सी देखो, सी टू डी ये वाला एंड बी टू सी एंड ए टू बी आर इक्वल एंड अपोजिट. तो ये तीनों के तीनों भगवान को प्यारे हो गए. तो ठीक है भाई, चलो आ जाओ, ये हटा देता हूँ. देयरफॉर ये पूरा हटा रहा हूँ बच्चे, है ना. देयरफॉर a to b b vector dot dl vector equal to mu naught ni. now a to b लेंथ कितना, ए बी ये h था, याद है आपको. so this is also h, it means this is 0 to h and b dl is b dl cos 0 because b and dl both are in the same direction. Okay, equal to mu naught ni. पेन अच्छा नहीं चल रहा है. So cos 0 is, what is cos 0 प्यारे बच्चों, 1. b is taken outside and we have 0 to h dl equal to mu naught ni. Now b is v and integration of dl is l. dl is l and upper limit minus lower limit, that is h, equal to mu naught ni और b इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन एच इंटू आई. अरे ये क्या आ गया, दिस इज स्मॉल एन म्यू नॉट एन आई और इसको हम कह देते हैं बी नॉट. वाई बी नॉट, बिकॉज इट इज इन वैक्यूम एयर और फ्री स्पेस, राइट. सपोज यू आर पुटिंग योर सोलेनाइड इन ए मीडियम, किसी मीडियम में डाल दिया तो क्या होगा, तो क्या होगा देखते हैं. इन ए मीडियम बी एम इक्वल टू, अब म्यू नॉट की जगह म्यू आ जाएगा, म्यू एन आई. एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज म्यू, म्यू आर म्यू नॉट एन आई. और इसको देख के आपकी आंखें चमकने लगी कि अरे भाई ये तो क्या आ गया, म्यू आर इंटू बी नॉट. इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड
increases, राइट। थोड़ा जल्दी जल्दी किया, फिर से बताता हूँ, देखिए यहाँ दिस इज dl, dl का h आएगा, h इधर आ गया, n by h इज number of turns per unit length small I. So B naught equal to mu naught Ni. It means magnetic field depends upon permeability, number of turns per unit length and also current. More current, more magnetic field. पर आपके मन की इच्छा कभी शांत नहीं होती, क्योंकि हमेशा मनुष्य को ज़्यादा चाहिए, मोर। दिल मांगे मोर होता है ना हमेशा। तो हमने सोलेनाइड को उठा के मीडियम में डाल दिया, पानी में डाल दिया, ऑयल में डाल दिया, वही मंचूरियन की तरी में डाल दिया। सो इन ए मीडियम Bm हो जाएगा ये, एंड म्यू नॉट इज म्यू, म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, and permeability of the medium is equal to mu r into mu naught. Mu r is relative permeability, and this whole section is equal to B naught. So Bm equal to mu naught, mu r into B naught. It means magnetic field increases. अच्छा लगा आपको? अब अगर आप एंड की तरफ जाते हैं सोलेनाइड के, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड हाफ मिलता है। तो उसका एक्चुअली आपको फार्मूला नहीं मालूम है, बट दैट फार्मूला ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्टेट कंडक्टर। स्टेट कंडक्टर के अगर आप किसी भी एंड पे आएंगे एक्स या वाई, तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाता है, इसलिए यहाँ भी हाफ हो जाता है। तो आप ये भी लिखते हैं एक बार हो, नियर द एंड्स, क्या लिखते हैं बच्चों? नियर एंड्स, नियर एंड्स बी एंड इक्वल टू बी नॉट बाय टू। कितना था बी नॉट? म्यू नॉट एन आई अपॉन टू। इट मीन्स if you find magnetic field at the end of solenoid, you will get half of the magnetic field. इसका एक भाई भी है सोलेनाइड का, उसका नाम है टोरॉइड, टोरॉइडल सोलेनाइड, और उसका वीडियो में लास्ट ईयर बना चुका हूँ, आप देखें, आपको अच्छा लगेगा। So today we have completed Ampere circuital law, its proof, its applications. तो अगर आपको ये अच्छा लगा है प्यारे बच्चों, आपको लगा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स को भी शेयर करें, जो नीडी है उनको शेयर करें। तो घर पर रहें, खुश रहें, माता पिता को प्यार दें, उनसे प्यार लें, मोबाइल से खेलें लेकिन कम समय के लिए, यूज द मोबाइल फॉर वाइज पर्पस। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, थैंक यू।